Bismillahirrahmanirrahim. Though caliphates, and it's not easy to recap them in a one class. So definitely, whatever we will be discussing, it's going to be a recap of the specific topic. We cannot cover each and everything of these caliphates in just one lesson. Even a caliphate भी एक lesson में नहीं होती. That means 2-3 classes. So it's a recap session. तो इसमें आपको जो main चीज जिसके ऊपर मेरा focus होगा, that will be on the outline of these caliphates. First thing. Second thing which you will see is some of the most expected questions, which are likely not only for the test tomorrow, but also we are going to focus on those which are Cambridge point of view से which expected है. ठीक है, अगर आप outline देखते हैं सामने आपके सामने है, और if you look at the outline, हज़रत उस्मान के caliphate में 4 topics हैं. Election as a caliph बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक हेड स्टार्ट के कुछ कैंपसेस के स्टूडेंट्स के मॉक में भी ये क्वेश्चन था, उन्होंने दिया था. इलेक्शन एज अ कैलिफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है जो कंबाइंड फॉर्म में हजरत उस्मान के कैलिफेट में. वैसे ये रिसेंटली आया है नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में, अक्टूबर नवंबर 2025 नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. सेकंड थिंग जो मेरे हिसाब से कैम्ब्रिज में लाइकली है, चार्जेस लीडिंग टू हजरत उस्मान मार्टायरडम. ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान आंसर फॉर इट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. One is charges against Hazrat Usman, and the second thing is event leading to his martyrdom. So you need to understand कि आपके 10 mark के point of view से clear होना चाहिए. There is one more tricky question which I will discuss with Hazrat Ali's caliphate, not here. Do we have to do the expansion of Hazrat Usman as a caliph? And is there any question about it? ये एक last चीज जो इसके अंदर आपको clear होना चाहिए. Cambridge did not give a separate 10 mark question on expansion policy of Hazrat Usman till now. What type of question is asked? The question was about administration and expansion combined together. So abhi aapko wo questions answer aayenge, you will realize what are the questions which you have to focus on while going on with Hazrat Usman's caliphate. सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट में रखा हुआ है, लेकिन आपको इलेक्शन पे भी डिटेल्स चाहिए. मेरे इस हैंडआउट में इलेक्शन ऑफ हजरत उस्मान कंपैरेटिवली ब्रीफ है. इट हैज टू बी एक्सप्लेन, और आपको आगे फर्दर बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं. ये क्वेश्चन वेरी लाइकली है, तो ये तो आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए whenever you are preparing for Hazrat Usman's caliphate. There are 2 types of questions, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं. One is causes of revolt against Hazrat Usman and charges against him. इस क्वेश्चन में हजरत उस्मान के अगेंस्ट why the people dare to accuse हजरत उस्मान, उनकी हिम्मत कैसे हुई हजरत उस्मान के अगेंस्ट वॉइस रेज करें. तो आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे आएगा, his lenient personality, बनु हाशिम बनु उमैया के old differences. एक और पर्सन है जिसका रोल है, who took the advantage of Hazrat Usman's leniency. Who is that person? Abdullah bin Sabah. What's the movement? It's called Sabaite movement. That is the background behind Hazrat Usman के against causes of revolt. तो 3 reasons यहाँ explain हुए हैं. अगर आप ये first 5 lines देखते हैं, तो यहाँ पैराग्राफिंग थोड़ी सी जरूरी है. You should be making a paragraph here. What are the main issues? अगर आप देखें, Hazrat Usman's lenient attitude, kind-hearted personality, overlooking at the mistakes of his people, ignore कर दिया, timely action नहीं लिया, that is another issue. Plus Banu Hashim and Banu Umayya के पुराने differences. Hazrat Usman belong from Banu Umayya. Hazrat Ali belong from Banu Hashim. Actually ये indirectly link कर रहा है Hazrat Usman की election as a caliph के साथ. थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि end पे 2 लोग shortlist कौन हुए थे जब वोटिंग हुई थी. मैं अभी आता हूँ उसकी तरफ. हजरत अली एंड हजरत उस्मान. तो अब्दुल्ला बिन सबा he used that difference and he said that Hazrat Ali deserved to be the caliph and Hazrat Usman's election is unjust, so we should force him to resign. अब then he started accusing Hazrat Usman with number of charges, जो हमारा अगला डिस्कशन है, अभी हम उसकी तरफ भी आते हैं. Islam was like divided into sects. Sorry? Wasn't there also the time when Islam was divided into sects as well? Yes. That's called fitna actually. This time is called first fitna of Islam. The first fitna यही है कि हम आजकल normally थोड़ा सा आजकल की current situation में भी confused होते हैं कि what should we do, which country we should support, and who is right, who is wrong. Similarly, different schools of thoughts are going on. People are confused about that one. ये उस वक्त का situation था. Prophet's companions for the first time got stuck in a scenario कि what is right, what is wrong, to whom we support. Should we support the supporters of Hazrat Ali? Should we support the people who are supporting Hazrat Usman? So this is called fitna. Fitna mein ye hota hai, you cannot, it's a trial. You are stuck in making decisions there.
तो ये उस वक्त की सिचुएशन है एंड द मिस्चीफ मेकर्स took the very strong advantage of it and they found the minor differences and they make it bigger and it led to the crisis. अभी हमें जो चीज क्लियर होनी चाहिए हजरत उस्मान के अगेंस्ट why the uprising was there. Then we have to know the charges. ऊपर क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा हुआ था दो चीजें, अगर आप दोबारा क्वेश्चन को गौर करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, causes of revolt. Causes of revolt में charges हैं, but that is asked separately. So you need to make a paragraph in which you will write why people dare to speak about against Hazrat Usman actually. तो वो आपका एक पैराग्राफ उस पे बनेगा. उसके बाद चार्जेस हैं. यहाँ पे चार्जेस मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किए हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 चार्जेस डन. नीचे जो इंफॉर्मेशन है ये भी चार्जेस हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू इग्नोर दिस वन. कि हजरत उस्मान का हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वाला इशू जो है और नमाजें शॉर्टन नहीं करना हज के दिनों में, वो भी आप लिख सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल. व्हाई? बिकॉज़ आंसर इज ऑलरेडी लॉन्ग इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू इज मार्टायरडम आल्सो. अगर क्वेश्चन इज जस्ट ऑन चार्जेस, ऐड देम. चार्जेस कौन-कौन से हैं? आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट इट. स्टार्टिंग विद नेपोटिज्म, अपॉइंटिंग हिज फैमिली मेंबर्स ऑन द पोस्ट. यहाँ से देखें ऊपर पहला आएगा, इसको हम नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म कहते हैं. ये आपने एक्सप्लेन करना है हजरत उस्मान का क्या है. खाली चार्ज पे नहीं लिखना, यू नीड टू डेवलप दैट चार्ज, यू नीड टू मेंशन व्हाट वाज हजरत उस्मान's रिएक्शन ऑन इट. देन सेकंड चार्ज वाज lenient and weak control. थर्ड चार्ज क्या था? burn the copies of Quran. You will explain it and develop that point. Then another charge was spending a lavish life. Another Usman's reaction on it. Another charge is demolishing the Masjid an-Nabawwi's old structure. Why did he do that? To expand it, to accommodate more people. But the people said Hazrat Usman has disrespected the structure which was built by Holy Prophet ﷺ. So they took it in a negative way and that became a problem. ये charges हो गए सारे, यहाँ तक समझ आ गया. There are additional charges if you want, you can skip them. अभी बात खत्म नहीं हुई है. अगर क्वेश्चन ये पूछता है आपसे charges against Hazrat Usman, your answer is almost done. But you will make a paragraph in which you will mention the charges led to his martyrdom briefly. लेकिन अगर नीचे वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये आया है, outline the reasons for the unrest against Hazrat Usman, all charges वगैरह आगे, and write an account of. शुरू में आउटलाइन पूछा था, तो ये आपका एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ है. फोकस किधर है? an account of rebellionship in Medina which led to his martyrdom. तो आपके आंसर का एक बड़ा कोर पार्ट ये है जो भी कंप्लीट नहीं हुआ. अब ये चार्जेस ब्रीफ हो जाएंगे and you are going to focus on the second part of your answer which is now required, that is rebellionship in Medina. यहाँ पे मैंने बुलेट्स में लिखा हुआ, आपने इसको पैराग्राफ में लिखना है. चार्जेस यहाँ खत्म हुए, आपने लिखना है due to the charges the rebels started moving to Medina in groups. ग्रुप्स में आए और ये आपका डिस्कशन वहां पे आएगा. कौन से 4 प्रोविंसेस? 3 प्रोविंसेस है, सॉरी 4 नहीं है, 3 है. किन 3 प्रोविंसेस से रेबल्स आ रहे थे? इजिप्ट, कूफा एंड बसरा. सीरिया नहीं लिखना वहां पे. कई बच्चे वहां पे बाय मिस्टेक सीरिया लिख देते हैं क्योंकि जो 4 प्रोविंसेस हैं जहां पे नेपोटिज्म का चार्जेस थे उसमें सीरिया इंक्लूडेड है. बट द रेबल्स वर मेनली फ्रॉम वेयर? These 3 provinces, Egypt, Basra and Kufa. Egypt was the main sector. तो सारी अपराइजिंग शुरू हुई अब्दुल्ला बिन सबा की, वो इजिप्ट से स्टार्ट हुई है. एंड दे केम इन ग्रुप्स. उन्होंने क्या किया? मदीना को सीज कर दिया. It was the capital of Muslim state till that time. हज़रत अली की कैलिफेट में मदीना जो है वो कैपिटल शिफ्ट हो गया था मदीना से कूफा. वेरी गुड. तो कूफा became the capital, लेकिन हज़रत उस्मान की कैलिफेट में जो कैपिटल है वो मदीना है. हज़रत उस्मान के घर को उन्होंने सीज किया. फिर उस बीच में हज़रत अली का नेगोशिएशन एंड टॉकिंग. We will come. We are coming to that topic right now. अब यहाँ तक क्या हुआ? हज़रत अली interceded and he spoke to the mischief maker. भाई आपका इशू क्या है, आप बताएं क्या possibility. Then he convinced Hazrat Usman to do one thing, to change the governor of Egypt. Who was the existing governor? Abdullah bin Saad. Who is the new governor? That is Muhammad bin Abu Bakr, who is the son of Hazrat Abu Bakr also. Problem sorted temporarily. Log वापस चले गए. All the people who were there in Medina, who sieged the city of Medina, they returned back. But they came back after a few days. This is events leading to his martyrdom. So we need that paragraph also. और इस paragraph में you're going to talk about how the siege, दोबारा re-siege, actually first siege हुआ, लोग चले गए, फिर दोबारा वापस आए. Then the false letter discussion is going to take. What is the issue with the letter?
they returned back and they said we intercepted or we found a letter from Hazrat Usman और उसके उसमें उनके seal हुए हैं and in which he gave instructions to kill Muhammad bin Abu Bakr and his supporters when they will arrive there. मैंने यहाँ पे पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा सा समझाने के लिए अरबिक में एक वर्ड है अकबिल और एक है उक्तुल जस्ट अ डॉट डिफरेंस इज देयर बा और ता का डिफरेंस है वो इंटेंशनली भी हो सकता है इट कुड बी अनइंटेंशनली पॉसिबली but Hazrat Usman's stamp was there seal was on it when the instructions was there and they said Hazrat Usman you are responsible for that order. Hazrat Usman denied it but these people sieged the house. Details of the siege is going to be there. Cutting of the food supplies, who protected Hazrat Usman. इसकी थोड़ी और डिटेल भी मैं आपको अभी अलग से दिखाता हूँ यहाँ पे ये इनफ है but it depends on the question. एक और क्वेश्चन है where you need more details about Hazrat Usman's martyrdom. तो ये क्वेश्चन अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे you will definitely get 10 out of 10 क्योंकि जो मैक्सिमम डिटेल इस क्वेश्चन की है इनफ है. इमेजिन अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन आज आया नहीं है about Hazrat Usman's martyrdom. तो it is also possible. How and why he got martyred ऐसा क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ये डिटेल्स थोड़ी सी और बढ़ानी होगी. अब आप और क्या लिखेंगे? We don't need charges then. We will just briefly discuss. I'm showing you one more question which I was telling you. पहले आपको साथ ही इधर लिंक कर दूं उसको और वो क्वेश्चन है which one is that one? Not this one. Look at this question. Write an account of martyrdom of Usman and election of Ali as a caliph. This is the question we gave it in our school exams also, considering the students should understand such type of questions there. ये Cambridge की marking scheme है on both paragraphs are about Hazrat Usman's martyrdom. इसमें charges include नहीं required अगर आप देखें इसलिए दिया हुआ भी है कि write about the candidates do not need to write about the companionship in Medina. So you don't need that one actually. So that's the reason why you don't have to go in that detail by the way. You can mention it there, mention it. यहाँ बस instruction आपको दिया हुआ है कि it could be read as a development of the answer. That's your choice, but manage your time क्योंकि आपने हज़रत उस्मान का अब हज़रत उस्मान के martyrdom की details यहाँ पे ज़्यादा है. Why the mischief makers first they siege for 50 days और अचानक they attacked on हज़रत उस्मान? There were reasons behind it. हज का मौसम सीजन खत्म हो रहा था. All the people who went for Hajj, Medina city was empty. No one was there. Everyone went for Hajj. और कुछ companions थे, they already left Medina to avoid this type of chaos. काफी सारे companions को जब आप study करते हैं, they were not in Medina during that situation. They preferred to live in other cities rather than staying in Medina. अब जो mischief makers थे, they were having rule or control in the city when Hazrat Usman was sieged in his house with his wife Hazrat सर जी सर जो आपने अभी पॉइंट किया कि जो कंपेनियंस है वो मदीने से बढ़ के सर ये हम जो फोर्थ कैलिफेट है उसे में भी हम मतलब लिंक कर सकते हैं ना जो बैटल ऑफ कैमल है. बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि कुछ कंपेनियंस को जब हम पढ़ते हैं ना 10 प्लस फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि दीज पीपल लेफ्ट मदीना टू अवॉइड क्योंकि आप किसी को भी साथ देंगे तो यू आर काउंटेड एज योर सपोर्टर और ये बड़ा टफ सिचुएशन था क्योंकि हजरत अम्मार बिन यासिर वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपेनियंस हजरत अली की साइड पे थे and he got martyred in the battle between Hazrat Ali and Muawiyah, the Syrian forces. Battle of Siffin. Battle of Siffin के अंदर तो अब some companions preferred not to go in on any side or neutral रहे तो उन्होंने मदीना छोड़ दिया था. तो आप बिल्कुल एग्जांपल लिख सकते हैं battles की जैसे वो हजरत साद बिन नबी वकास ने कहा था कि बिल्कुल ऐसे आजाद बिन नबी वकास ने 2-3 और नाम भी मेरे जहन में भी नहीं आ रहे लेकिन आप जब पढ़ते हैं पर्सनालिटीज को you will find they prefer to stay neutral and not to be on any one side. अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल ज्यादा क्या मिलती है. एक तो ये कि सीरिया से भाई सीरिया से आर्मी क्यों आ रही थी हजरत उस्मान के पास? What was the reason? वहाँ पे बनु उमैया की कहते हैं जो गवर्नर से बनु उमैया के थे. बिल्कुल ऐसे तो बनु उमैया की सपोर्ट वहाँ पे प्रॉमिस थी तो सीरिया से आर्मी तो और अगर वो आते तो डेफिनेटली मिस्टीफ मेकर्स डिफीट हो सकते थे. They wanted to kill हजरत उस्मान before the army was there and they were going to help हजरत उस्मान. तो इस चीज को भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन आधा है. हाफ क्वेश्चन हजरत अली इलेक्शन मैंने यहाँ ऐड नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक किसका है हजरत उस्मान का है तो मैंने हजरत अली इलेक्शन यहाँ ऐड नहीं किया. आपको एक एवरेज क्वेश्चन है हजरत अली इलेक्शन और मोस्ट इतनी इंफॉर्मेशन और डिटेल आपने वहाँ पे ऐड करनी वो मैं आपको अलग से अभी दिखा दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है. हजरत उस्मान के कैलिफेट में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको परफेक्टली आना चाहिए. दूसरा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज हजरत उस्मान इलेक्शन एज अ कैलिफ. अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये क्वेश्चन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पे अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है. इलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी हजरत उस्मान पे आया हुआ है तो आपने ये एडमिनिस्ट्रेशन का सजेस्टेड आंसर है.
हजरत उमर की जिस स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन आती है, that student can manage Hazrat Usman's administration very easily. You will begin by he followed the administrative policy of Hazrat Umar. Majlis Shura, Majlis Aam, we are going to talk about it. Provinces की division, province का जो leader है उसको क्या कहते हैं, गवर्नर या आमिल या वाली, जो सब उसके असिस्टेंट आप लिख सकते हैं, डेवलप किया जा सकता है. सैलरी में इंक्रीज हजरत उस्मान ने लॉन्च किया आएगा. हजरत उस्मान ने कुछ पॉलिसीज हजरत उमर से थोड़ी डिफरेंट थी. कैन एनीवन टेल मी दो डिफरेंसेस हजरत उस्मान की एडमिनिस्ट्रेशन में और हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन? सर एक उन्होंने नेवल फ्लीट बनाया था, दूसरा उन्होंने प्रोविंसेस का अच्छा, मैं उसका गुड पॉइंट, ये एडिशनल में आ रहा हूँ, एक सेकंड. आईएस, हाँ, लाइक व्हाट? अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट अभी गुड, मैं पहले वो पॉइंट बताता हूँ, फिर जो मूसा ने पॉइंट आई थिंक ऐड किया मैं उसकी तरफ भी आता हूँ. हजरत उमर की दो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी. एक हजरत उमर का ये था कि मिलिट्री ऑफिशियल्स कैन नॉट लिव विद नॉर्मल पब्लिक, दे हैव टू लिव इन द कैंट एरिया, दे हैव टू लिव इन गैरिजन एरिया. जबकि हजरत उस्मान वाज लीनिएंट, he allowed you can live with the colonies. दूसरा, हजरत उमर did not allow the military officials to purchase land in conquered lands. और उसके रीजंस हैं, क्योंकि ज़ाहिर पीपल विल फाइट फॉर द लैंड, दे विल नॉट. हजरत उमर क्या करते थे, जो भी लैंड कैप्चर होती थी ही यूज्ड टू रिजर्व इट इन द स्टेट ट्रेजरी, बैतुल माल, और वो पब्लिक को बेनिफिट जाता था. हजरत उस्मान रिलैक्स, डिसाइड यू कैन परचेज लैंड देयर. ये दो रिलैक्सेशन है. दूसरा जो मूसा ने पॉइंट ऐड किया, डेफिनेटली हमें और कुछ हजरत उस्मान के पॉइंट्स चाहिए. फर्स्ट टाइम नेवल फ्लीट बनी मुसलमानों की, ठीक है, नेवी फर्स्ट टाइम बनी. पोर्ट ऑफ जद्दा मुसलमानों ने बनाया. मस्जिद नबवी की हजरत उमर ने भी एक्सपेंशन की थी, लेकिन जो मैसिव एक्सपेंशन है हजरत उस्मान के कैलिफेट में आ जाती है. एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, इट इंक्लूड्स हिज एक्सपेंशन आल्सो. एक पैराग्राफ आपने लाजमी मेंशन करना है. जैसे अगर आप अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन की वैसे बात कर रहे हैं, जनरल बता रहा हूँ, आपने खाली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को नहीं लिखना, आपने बताना डिड ही फोकस ऑन बॉर्डर्स और ही फोकस ऑन इंटरनल इश्यूज. हजरत उस्मान में भी आपने इसी तरह मेंशन करना है, ही एक्सपेंडेड द एम्पायर. And you will also make a paragraph about his crisis there. How many years Hazrat Usman ruled, by the way? Almost 12 years. You're right. सबसे highest tenure, biggest tenure अगर किसी कैलिफ का है वो हजरत उस्मान का. First half very successful, last half challenges से भरा हुआ था. एक पैराग्राफ आपने हजरत उस्मान की एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग चैलेंजेस भी आपने क्या करनी है वहां पे ऐड करनी है. यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर? ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है हजरत उस्मान की. आप इसके अंदर और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं. ये वो क्वेश्चन है जो इलेक्शन ऑफ हजरत उस्मान एज अ कैलिफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है. मैंने यहाँ पे इलेक्शन की डिटेल लिखी हुई है. क्या चीज मिसिंग है थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ. हजरत उमर से आपने लिंक करना है. हजरत उमर इन हिज लास्ट डेज ही अपॉइंटेड अ पैनल ऑफ 6 पीपल. आपने वो लाजमी 6 पीपल हजरत उमर को आपने रेफर करना है. 6 पीपल के नेम आपने लिखने यहाँ पे जरूरी है जिन लोगों को हजरत उमर ने 10+ कंपेनियन में से रिकमेंड किया था. यहाँ पे एक और पर्सनालिटी है जो 10+ के कंपेनियंस में अलाइव थी, हजरत उमर ने उनको ऐड नहीं किया था, वो थे सईद बिन जैद. मैं वो भी बताता हूँ दूसरा पॉइंट. सईद बिन जैद क्यों नहीं ऐड किया था? वो 10+ कंपेनियन है, लेकिन हजरत उमर के वो ब्रदर इन लॉ भी सर, तो नेपोटिज्म से बचने के लिए. यस. फिर दूसरा पॉइंट ये है कि हजरत उमर की एक इंस्ट्रक्शन ये थी कि माय सन अब्दुल्ला बिन उमर विल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कैलिफ, दो ही विल हेल्प इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस बट ही विल नेवर बी अपॉइंटेड. कुछ बच्चे यहाँ पे ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का भी लिखते हैं कि हजरत उमर की विश, ये डिजायर ये थी कि अबू उबैदा बिन जर्राह कैलिफ. सर लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, बट ही डाइड few months before हजरत उमर's martyrdom, तो he was not able to give his name. तो ये डिटेल आप ऐड करेंगे. अभी तो हजरत उमर का टाइम आ गया. हजरत उमर की डेथ हो गई. 6 लोगों में जो एक पर्सनालिटी उन्होंने क्लियर कट अपना नाम विड्रॉ कर दिया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, एंड ही सेड दैट I don't prefer to be appointed as a caliph, but I will help you in this process. यहाँ पे मेंशन हुआ. फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है, दे गेव देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ईदर हजरत उस्मान और हजरत अली. आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं. एंड पे 2 लोग रह गए, शॉर्टलिस्ट हो गए, दैट वाज हजरत उस्मान एंड हजरत अली. एंड देन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट, बल्कि मैं कुछ बच्चों के आंसर चेक कर रहा था, उन्होंने इवन लिखा हुआ था कंपेनियन का नाम, एंड ही क्लोज द डोर एंड ही सेड वी आर गोइंग टू डिसाइड इट, और जब तक डिसीजन नहीं होगा वी विल नॉट लीव. तो मीटिंग हुई और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे, एक्चुअली होली प्रॉफिट ने एक हदीस से उनको ये ऑप्शन थी कि अगर किसी जगह वोट की जरूरत हो कि अब्दुर्रहमान वोट विल बी काउंटेड एज डबल, 2 वोट्स का उनको पावर होगी. फाइनल जो पावर आया, जो फाइनल डिसीजन आया, दैट केम इन द हैंड ऑफ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हु वाज एक्चुअली द आर्बिट्रेटर जो डिसाइड कर रहे थे.
उन्होंने हजरत अली और हजरत उस्मान में जिसको वोट देना था वो इलेक्ट हो जाना था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत अली और हजरत उस्मान से एक क्वेश्चन रेज किया। वो क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखें कैम्ब्रिज में मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि दे आस्क अ क्वेश्चन एंड ही पुट अ क्वेश्चन, यू कैन सी द फोर्थ लास्ट लाइन के एंड में लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन ये था, he asked both of them how you will make judgment among the people, how you will make the legacy, the decisions. तो हजरत उस्मान ने कहा था कि I would choose Quran and Hadith and the legacy of the previous two caliphs. Hazrat Ali said Quran and Hadith and my own ijtihad or judgment. Hazrat Ali का अपना point of view था। Hazrat Abdurrahman bin Auf liked Hazrat Usman's answer and he allowed him, yeah, he gave his vote in favor and then finally Hazrat Usman became the caliph. आपने हजरत उस्मान की अगर कहीं पे स्पीच ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। ये इलेक्शन की थोड़ी डिटेल चाहिए और ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कुछ स्कूल के मॉक में भी आया हुआ था। मेरे हिसाब से इसके चांसेस पार्शियली हैं क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर 2025 में आया लेकिन पाकिस्तानी वेरिएंट में नहीं आया, नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में। मैं अभी आपको उसका क्वेश्चन बैंक भी दिखाता हूँ। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हो जाएगी, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन हजरत उस्मान की कैलिफेट में जो एक सिग्निफिकेंट है। अच्छा, एक पहले ना बहुत एक क्वेश्चन आता था वो ये था, अब तो ये नहीं आ रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें सब कुछ आएगा हजरत उस्मान का। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हिज इलेक्शन, यू विल टॉक अबाउट एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सपेंशन का इसमें ही है, अगर आपको एक्सपेंशन पे डिटेल नोट चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। हजरत उस्मान की एक्सपेंशन है। फर्स्ट पैराग्राफ इज अगेंस्ट पर्शियंस, एक्सपेंशन अगेंस्ट पर्शियंस। सेकंड पैराग्राफ इज एक्सपेंशन अगेंस्ट रोमन्स, बाइजेंटाइन। हजरत उमर की ही पॉलिसी कंटिन्यू की है। अगर आपको डिटेल करना है, अगर डिटेल आपने चूज नहीं करना, आप शॉर्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Look at this question. Write an account of administration and military achievements. Administration repeat हुआ है तो इसमें मैंने highlight नहीं किया हुआ, ये military achievement. If you want to do the short preparation for Hazrat Usman's military achievement, go for this one. You will see the names of the areas, you will see the major dimensions, details यहाँ पे cover हो रही हैं। कैम्ब्रिज में ये question अभी तक इसी तरह आया हुआ है। या it will be asked as a part of a complete 10-mark question of Hazrat Usman's caliphate as a whole. तो उसमें कितनी इंफॉर्मेशन वैसे रिक्वायर्ड है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये आंसर या कहीं और से, अगर आपको किसी और नोट्स में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, वैसे ये इनफ डिटेल है, ये पूरी की पूरी जो है ना एक्सपेंशन है टिल हियर। So I personally think which is more than enough, and that is last thing I suggest you to do when you are doing Hazrat Usman's caliphate. अगर आपको नहीं याद होती एक्सपेंशन की इतनी डिटेल, you can keep it aside. बाकी चीजें आप करके हजरत अली की कैलिफेट पे चले जाएं, क्योंकि कल के टेस्ट में एटलीस्ट मैं आपको एक्सपेंशन पे 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट आई विल सजेस्ट यू कि इस तरह का क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया हुआ जिसमें पार्शियली एक्सपेंशन इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। ये एक्सपेंशन वाला पैराग्राफ आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा, बिकॉज वी नीड अ पैराग्राफ ऑन एक्सपेंशन पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। ठीक है, both Hazrat Usman and Hazrat Ali, that's why. So there are two caliphates and we are having less time, that's why. So you need to make it. This is about Hazrat Usman's caliphate. चार चीजें हैं क्वेश्चन जिस पे आपने फोकस करना है. Charges leading to smart item, election and administration. They are the two main questions. Then the third question which you can say that is Hazrat Usman's expansion policy. Simple. ठीक है. Election and administration एक question है. Charges leading to smart item is the second question. Third question is expansion, which you can keep it as the last thing to be done. Moving on to Hazrat Ali's caliphate now. If someone has a question about Hazrat Usman's caliphate, you can ask it. Okay. Hazrat Ali की caliphate की outline मैंने यहाँ लिखी हुई नहीं है, मैं आपको verbally बता देता हूँ. 5 things are there. What are the 5 things? Again, election as a caliph. This is what's the first thing which you should be clear about it. और election के साथ ही एक और चीज है, challenges and early steps. Election की details अच्छी खासी आपको चाहिए, क्योंकि you saw the question on the previous slide. We need a complete page information about Hazrat Ali's election as a caliph, and that's not a big deal. You can see lots of details there. Mischief makers in control. Hazrat Usman के martyrdom के बाद 3 days तक no caliph was there. Who was controlling Medina? The rebels. And they wanted to leave back, and before they will leave Medina, they wanted someone to rule from their own side. जो उनको मतलब acceptable हो और वो उसकी policies के against ना जाए. अब they came to 3 days के बाद उन्होंने आके मुसलमानों का जो टीम थी उनके साथ ऑप्शन दिया, and they suggested 3 names. What were the 3 names? Hazrat Ali, Hazrat Talha and Hazrat Zubair. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है. People of Egypt gave the name of Hazrat Ali.
जो रेबल्स के 3 ग्रुप्स थे, जो कुफा वाले हजरत तलहा और जो बसरा वाले, they gave the name of Hazrat Zubair. They also went to the Ansar, right? First they came to these 3, they excused, they said we will not take that responsibility, यहाँ पे आप डेवलप करेंगे, यहाँ बात खत्म होगी. Then they moved towards Ansar. हजरत अली के पास हजरत अली ने नो कर दिया, तलहा एंड जुबैर के पास दोनों ने भी नो कर दिया. Then they moved to Ansar and they asked Ansar, do you want? Ansar ने भी excuse कर दिया. अब जो rebels हैं, they threatened, they warned, if you will not choose the caliph, we will take a massive action. Maybe we will kill these 3 people, even whatever we will do, we will do. Now people came to Hazrat Ali and they requested Hazrat Ali, and Hazrat Ali finally agreed on that to take that responsibility. और मस्जिद नबी में Hazrat Ali as a caliph announce हुआ और उसके बाद सारा decision जो है, अब Hazrat Ali has to take 2 decisions to punish the killers of Hazrat Usman or to delay it. That's the first decision. Secondly, the rebels were asking Hazrat Ali कि आपने क्या करना है, governors of Hazrat Usman को dismiss कर देना है. अब Hazrat Ali has to decide, should he dismiss the governors or he will not. Ab he has to take both action, and he decided to change the governors, and he also preferred to delay the punishment of killers of Hazrat Usman, jiski wajah se further crisis started, because Hazrat Ali, when he delayed the punishment of killers of Hazrat Usman, jo Banu Umayyah ki side hai, jo Syrians hain, they declared that Hazrat Ali was a part of supporter of the killers of Hazrat Usman. That's why he is not punishing them, and he is listening to them, and he is changing the governors also. So वहां से वो issue दूसरी तरफ चला गया. 2 battles आ गई. एक है बैटल ऑफ जमल, which is a 10-mark question. यहाँ पे ये तो सारा बैकग्राउंड है, ठीक है. फिर सिचुएशन इन मदीना है. बैटल ऑफ जमल alone is a 10-mark question. मैं तो इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ. बैटल ऑफ जमल में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हजरत अली के बीच में कॉजेस क्या थे बैटल की, आपको भी समझ आ गए. डिले इन पनिशमेंट ऑफ किलर्स ऑफ हजरत उस्मान, दैट्स द कॉज. हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत आयशा got united, army की strength, peace negotiation. You will talk about the both armies stood next to each other and they were working on peace negotiation. Peace negotiation was successful, but the rebels at night threw the arrows from both sides. और फिर वो एक misunderstanding create हुआ, which led to the war, and it led to the death of many people from both sides. As per majority of the books, Hazrat, you can write the facts there. And after the battle, Hazrat Ali made the battle come to an end by making the camel on which Hazrat Aisha was sitting, because if she is sitting, it means the war is going on. So he managed to make that camel sit down, the camel sat, and then the battle ended with deaths of many people from both sides. And according to majority of the books, even Hazrat Ali led the janaza prayer, because that was the difference of decision to punish or not to punish the killers. It doesn't mean एक मुसलमान है और एक non-Muslim है. So Hazrat Ali led the janaza prayer, and then he sent Hazrat Aisha with respect back to Medina. Hazrat Aisha ने उसके बाद politics में participate नहीं किया. You can talk. यहाँ पे एक और चीज है. Hazrat Talha and Zubair, they already decided not to participate in the war. Why they decided not to participate in the war? Why they were with Hazrat Aisha, then they agreed not to fight. Great. This is what you are going to mention कि जब battle से पहले peace negotiation हो रहा था, Hazrat Ali called Hazrat Talha and Zubair and talked to them and reminded them. उसपे एक हदीस है. Last time I think मूसा ने वो discussion उसपे किया था कि one day Holy Prophet बल्कि नहीं शरियार ने, I think मुझे याद है दोनों में से किसी एक ने discussion किया था कि Prophet ﷺ saw Hazrat Talha, Hazrat Ali and Hazrat Zubair talking to each other. They were discussing with a friendly way. Prophet said, one day you will, Talha and Zubair will fight with you, argue with you, and Ali will be on the right side. So Hazrat Ali reminded this hadith to Talha and Zubair, and they immediately recalled that one, and they decided not to fight. But you can mention both were attacked by, one was attacked by Marwan and the other one was attacked by a unanimous person. So they both got martyred, और एक ही साथ ही दोनों की death हुई. इस्लाम भी दोनों ने एक साथ accept किया था, and they got martyred even together almost. So this is what you are going to write. Battle of Siffin, Cambridge में back to back बहुत दफा ही है, ठीक है. May-June 2025 Pakistani variant, Battle of Siffin. May-June 2024 non-Pakistani variant, Battle of Siffin. So less likely is there कि Battle of Siffin जो है आपकी एग्जाम में आएगी, लेकिन आपने अगेन इसको प्रिपेयर करना है. दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. Battle of Siffin and the events behind it, like events which led to it. Battle of Siffin and the events which came afterwards, like the outcomes of the Battle of Siffin. So दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको कनेक्ट करने हैं. Siffin ended with what, by the way? Who won the Battle of Siffin? Battle of Siffin का एंड कैसे हुआ?
सर arbitration हुआ था Arbitration. So Siffin leading to arbitration. Arbitration से who was not happy? Kharijites, a new सर group. फाजी Kharijites को control किस तरह किया? सर battle of Narwan Battle of Narwan. They are chain of events linked together. Siffin connected with Kharijites. Belief of Kharijites, you must mention it whenever you are asked. Arbitration and the results of arbitration. Battle of Nahrawan पहले इतना हम लिखवाते थे, अब ये 10 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो I will show you it's there. Hazrat Ali's martyrdom connected with Kharijites planning to attack. 3 लोगों को ड्यूटी दी गई थी Kharijites में कि आपने मुसलमानों के 3 कमांडर्स के ऊपर साइमल्टेनियस अटैक करना है. One of them saved himself. सर एक इजिप्ट गया था, एक डेमास्कस गया था और एक Yes. कूफा. Yes, तो हजरत अली वाला जो एक तो अमर इब्न अल-आस, he did not show up on the prayer on that day. मुआविया's guard जो था उसने उसको उनको प्रोटेक्ट किया and he was saved. And हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे जिसने अटैक किया, his name was सर अब्दुर्रहमान Ibn Muljam. Very good, Ibn Muljam. So this is what you are going to mention. Hazrat Ali की injury and then further on he got martyred. 17th of Ramadan he was 18th of Ramadan. Sorry, he was attacked and he got martyred on 21st of Ramadan. वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे भी आपने देखने में, आपको ना एक और क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ जो रीसेंट क्वेश्चन बैंक है, लेकिन आप ये क्वेश्चंस भी देख लें, कैम्ब्रिज के डिफरेंट ईयर्स के अंदर आए हैं. Governors appointed by Usman question है, what were the consequences of Hazrat? Write an account of consequences of Hazrat Usman's murder. What you are going to write in it? Which battles? सर Exactly. मुस्लिम यूनिटी वाज अफेक्टेड. कौन सी कैलिफेट आप लिखेंगे? हजरत अली की लिखेंगे वहां पे. स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हजरत उस्मान's मर्डर. अब कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान यहाँ नहीं चाहिए. यू आर नीडिंग एक्चुअली हजरत अली's कैलिफेट एंड द बैटल व्हिच टुक प्लेस आफ्टर दैट. So you got the idea? Question गौर से. Like a paragraph. No, I don't think so. We need it. You will mention you will mention after Usman's murder there was no caliph for 3 days and the situation of chaos and anarchy was there, so you will develop. Like to either. Then Hazrat Ali, then that your election of Hazrat Ali will be there. So what you are going to discuss is Ali's caliphate, not Hazrat Usman. This is what I was telling you. इसी से मिलता हुआ ये question है. Ali's policy of changing the governors appointed by Usman led to lots of problems. Outline these. अभी आपके पास एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर का आ गया. Why did Hazrat Ali make changes? ये भी एक क्वेश्चन है. ये 10 मार्क के क्वेश्चन का पार्ट है. Why do you think Hazrat Ali made changes in it? Pressure from the rebels to avoid similar challenges for him in future because nepotism and दूसरे issues थे, तो उसके अपने यहाँ पे suggestions दी हैं. ये क्वेश्चन I think 7-8 years पहले आया हुआ है, but it's a good question. I will suggest कि आप इसको भी देखें. Repeat नहीं हुआ उसके बाद, ये 1 दफा ही आया हुआ है. अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी में बैटल ऑफ जमल आएगी बाय द वे. ओके, उसके बाद है 4 मार्क्स. इजी है, 4 मार्क्स लाजमी देखें. अभी कई बच्चों ने मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखाई. आई फाउंड मेजॉरिटी ऑफ देम दे स्ट्रगल्ड इन 4 मार्क क्वेश्चन. टीचर्स आर कॉशियस एंड स्ट्रिक्ट इन गिविंग 4 out of 4, बट यू शुड रीच 3 out of 4. 4 out of 4 भी मिलता है और मिलने चाहिए, लेकिन 3 out of 4 से नीचे मार्क्स मींस कि आपने कुछ चीजें वहां छोड़ी हुई हैं, आपको आपके आंसर में कुछ मिसिंग है. मैंने काफी 4 मार्क के क्वेश्चंस अपने हैंडआउट में सजेशंस के लिए दिए हुए, एंड इट्स नॉट नेसेसरी आप सारा लिखें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, तो यू कैन कट डाउन फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम देयर. डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ सिफीन एंड आर्बिट्रेशन, ये हेड स्टार्ट जो आई थिंक H11 वाला है, वहां पे उन्होंने गुलमोहर उसको कहते हैं, उन्होंने अपने मॉक में ये क्वेश्चन दिया हुआ था. एक हजरत उस्मान पे दिया हुआ और एक हजरत अली पे ये क्वेश्चन था. एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है. मेरे हिसाब से सिफीन के चांसेस कैम्ब्रिज में कम है बिकॉज इट केम बैक टू बैक इन लास्ट 2 years इन पाकिस्तानी वेरिएंट एंड नॉन पाकिस्तानी. लेकिन हजरत अली अभी रिसेंटली फिर आया. लीडरशिप क्वालिटी अगेन वो यहाँ पे हैंडआउट में नहीं है. लीडरशिप क्वालिटी ऑफ हजरत अली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नहीं यहाँ नहीं. ठीक हो गया. ओके, यस. टेस्ट अभी कल वाले नहीं चेक हुए ऑनेस्टली, क्योंकि मैं आज कुछ मैंने ट्राई किए लेकिन ऑनलाइन 1-2 शायद चेक किए मैंने, तो आई विल डू दैट पॉसिबली कल दिन तक हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, सॉरी ये कौन सा है? बैटल ऑफ सिफीन, ये वाला क्वेश्चन तो चले आपको अब समझ आ गया. दूसरा नहरवान, ये मुश्किल क्वेश्चन था जो फर्स्ट टाइम आया था और इसकी डिटेल कुछ बुक्स में मिसिंग है. डू हैव अ लुक एट इट. कैम्ब्रिज नहावंद और नहरवान कंबाइन करके भी देख सकते हैं. एक हजरत उमर की कैलिफेट है और एक हजरत अली की कैलिफेट है. और मैं आपको वैसे भी बताऊं, जब ये कैम्ब्रिज में क्वेश्चन आया था मई-जून 2023 पाकिस्तानी वेरिएंट में नहावंद एज अ 10 मार्क क्वेश्चन था. अक्टूबर-नवंबर में नहरवान है. ये अक्टूबर-नवंबर 2023 का क्वेश्चन है.
तो स्टूडेंट्स पहले नहावन से हिले थे और अक्टूबर नवंबर में उन्होंने दूसरा एक शॉक दे दिया कि गिव नहरवान को, तो नहरवान पहले 4-5 लाइन्स का था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्ट्रेच इट। आप एक दफा देख लें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो आप पहले पूछ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नहरवान शायद कल टेस्ट में ना दूं, लेकिन यू मस्ट बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि आप कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं। डोंट टेक सच टाइप ऑफ रिस्क हियर। और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये हजरत अली की पूरी कैलिफेट इसमें कवर्ड होगी। ये पुराना क्वेश्चन है। और जो मैं आपको, सॉरी मैं आता हूँ आपकी तरफ, हजरत तलहा और जुबैर का बता रहा था, वो रेफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। ये यहाँ लिखा हुआ है, वन डे तलहा एंड जुबैर। ये आंसर अगर आपने प्रिपेयर कर लिया मेरे हैंडआउट का, इसमें हजरत अली की इलेक्शन भी है, बैटल ऑफ जमल भी है, बैटल ऑफ सिफीन भी है, आर्बिट्रेशन भी है, लीडिंग टू हिज मार्टायरडम। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि दैट्स द क्वेश्चन और ओवरऑल हजरत अली कैलिफेट। आपने इतना नहीं लिखना, आई पर्सनली एडेड डिटेल्स कि जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, हजरत अली की ऑलमोस्ट पूरी कैलिफेट कवर उसकी हो जाती है। ठीक है। यस, यू आर आस्किंग समथिंग अयान। सर अगर कोई इस तरह का सवाल है जिसमें द इवेंट्स लीडिंग अप टू आर्बिट्रेशन ट्रायल वर्सेस पुलिस कैलिफेट, तो उसमें बैटल ऑफ सिफीन का इवेंट्स लीडिंग अप टू या इवेंट्स आफ्टर? इवेंट्स लीडिंग अप टू में डेफिनेटली ऐसा वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है। इवेंट्स ये भी पॉसिबल सिफीन बनता है, सिफीन आया हुआ है, इवेंट्स लीडिंग टू सिफीन, तो उसमें कॉजेज आएंगे। नहीं, तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लाइक आर्बिट्रेशन लीडिंग अप टू आर्बिट्रेशन, तो उसमें स्टार्टिंग ऑफ कैलिफेट आएगा? बिल्कुल आएगा। हजरत अली के डिसीजंस आएंगे और फिर उसका जमल का ब्रीफ पैराग्राफ आएगा, फिर सिफीन आएगा। वैसे क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी डिटेल बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आप एक दफा बाद में देख लेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दिखाना चाह रहा हूँ बिफोर आई वाइंड अप टुडेस डिस्कशन। यहाँ पे जो टिक मार्क क्वेश्चंस है ना, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस है, ताकि आपको हजरत उस्मान, हजरत अली के लेटेस्ट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। अक्टूबर नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उस्मान कैम्ब्रिज ने, थोड़ा सा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से इंस्पायर हो गई है कैम्ब्रिज भी, उन्होंने इलेक्शन की जगह सिलेक्शन का वर्ड यूज किया है। जो पॉलिटिकल आजकल वर्ड यूज हो रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। सो द कैम्ब्रिज आल्सो स्टार्टेड द वर्ड सिलेक्शन ऑफ उस्मान एज अ कैलिफ एंड हाउ ही गवर्न्ड। ये क्वेश्चन अभी कुछ स्कूल्स के मॉक में आया, मैंने आपको भी बताया कि ये चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी दोबारा आ सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन का क्वेश्चन है, और वो सिलेक्शन इसलिए क्योंकि वो शॉर्ट लिस्ट होते होते फाइनली वन पर्सन वाज सिलेक्टेड, दैट्स व्हाई। ये आसान क्वेश्चन था इन स्टूडेंट्स के लिए। हजरत उस्मान का, हजरत उमर का कंपाइलेशन, दैट इज नॉट अ बिग डील। इस पेपर में हजरत अली की, ये अभी पाकिस्तानी वेरिएंट अक्टूबर नवंबर है, हजरत अली की लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज आस्क्ड हियर इन इट। तो ये क्वेश्चन मार्किंग स्कीम देख लें, अभी चांस नहीं है आपके कल के टेस्ट में, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को रूटीन में टेस्ट में दिया तो दे स्ट्रगल, लेकिन इसकी मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी है, उसको भी देख लें। वरना मैं बाद में किसी टाइम अगर मुझे लगा, मैं आपको एक दफा जब रिकैपिंग क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये कवर करवा दें। कल टेस्ट में ये मैं क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है जो 2 दफा आया है। आपने जो पूछा था डिटेल्ड वन सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ आर्बिट्रेशन बन सकता है, जैसे यहाँ वन सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ सिफीन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया था पाकिस्तानी वेरिएंट में, जो बच्चे आपके सीनियर्स अपेयर हुए थे उनका पेपर है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे 2024 में यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2024 नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट अक्टूबर नवंबर, सेम क्वेश्चन वाज देयर। तो कई दफा दूसरे वेरिएंट का क्वेश्चन आप अपने करंट पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट अक्टूबर नवंबर 2025 लाजमी देखते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया, 2 और क्वेश्चन हैं बस। बैटल ऑफ जमल अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2024 मई जून नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में। और फिर उसके बाद हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी हजरत उस्मान की एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री अचीवमेंट, ये भी अक्टूबर नवंबर 2021 और 2023 अक्टूबर नवंबर का नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट क्वेश्चन है। और ये नहरवान है जो मैं आपको बता रहा था, ये भी यहाँ पे है। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट में रह गया, बाकी नहीं है इसलिए मैंने किया। ये है हजरत उस्मान का चार्जेस लीडिंग या रिवॉर्ड वगैरह आ जाता है, मई जून 2022 नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट है। और आखिरी क्वेश्चन ये है मार्टायरडम ऑफ हजरत उस्मान एंड इलेक्शन ऑफ हजरत अली एज अ कैलिफ, जो मैंने आपको दिखा दिया, ये मई जून 2022 पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है। तो यस, no, it's not necessary. You can see two questions. This is what you need to make sure. You can see here, you can see here 2 questions आपके आए हुए हैं, Writing guided caliph as a whole and then Hazrat Usman and Hazrat Ali's
connection. Can you see that? So there are mostly questions in which you have two questions from RIT guided caliphs, and that is something which you need to keep in mind. Don't take a risk of leaving the caliph fields there.